Hello students, myself Sanjita Kumari, PGT Economics, KVOF मुरादनगर। आप सब इस स्लाइड पर एक पिक्चर देख रहे हैं जो एक बैंक का है। बैंक क्या होता है? What is bank? We have already read that bank is a financial institution which accepts deposits and advances loan. We have also learned that there are two types of bank, commercial bank and central bank. In this video, I am going to tell you about the function of central bank. Before we move ahead, I want to tell you that commercial banks deals with public while central bank deals with government. Keeping this fact in mind, we will try to learn the functions of central bank. Every central country has a central bank. Central bank is also called apex bank. It is at the top of the banking structure. It not only control and regulate the banking and financial institution of a country, but it also save the country from the situation of inflation and deflation by controlling supply of money. It is also called the government's banker, advisor and agent. It performs various important functions. Here it is written, central bank is an apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. In our country, the name of this apex bank is RBI. In other countries also there are central bank. As I told you that in every country there is a central bank. For example, in America, the central bank is known by the name of Federal Reserve Bureau. In England, it is called Bank of England. In Pakistan, it is called Bank of Pakistan. In France, it is called Bank of France. And in our country, it is called RBI, Reserve Bank of India, which came into existence on 1st April 1935. You can see the picture of Reserve Bank of India. This is our central bank. This central bank performs various types of functions, and that is grouped into 8 major functions, but we have to study only 4 major functions of the central bank as prescribed by the CBSE. These 4 functions are authority of currency issue or bank of issue, government's bank, banker to the government, banker's bank, and the last one is controller of credit. It is last but not least. It is very important function of the central bank, or you can say the RBI. First, authority of currency issue. Central bank has the sole authority for issue of currency in the country. In India, RBI has the sole right of issuing paper currency notes except 1 rupee note and coins which are issued by Ministry of Finance. हमारे देश में 1 रुपया का कॉइन और नोट को छोड़कर बाकी सारी मुद्राएं जो हैं, सारे रुपये जो हैं, वो RBI इशू करती है। अब RBI के इशू करने की वजह से RBI को नोट इशू के मामले में मोनोपोली राइट मिली हुई है। All the currency issued by the central bank is its monetary liability. That is, central bank is obliged to back the currency with assets of equal value to enhance the public confidence in paper currency. अब यहाँ पे देखिए, what is the meaning of monetary liability? आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक जो भी अमाउंट
इशू करती है, जितने भी वैल्यू का नोट इशू करती है, उसके बराबर वो एसेट्स भी अपने पास रिजर्व कर रखती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज़ एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स लोकल करेंसी सिक्योरिटीज़। और इसी वजह से लोगों का पेपर करेंसी पर कॉन्फिडेंस रहता है, फेथ रहता है। उन्हें पता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में उनका ये जो पैसा है वो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने उसके वैल्यू के बराबर गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियंस रिजर्व में रखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए कि सोल अथॉरिटी होने की वजह से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द सोल अथॉरिटी of RBI in the matter of note issuing? First, it leads to uniformity in note circulation. नोट सर्कुलेशन के मामले में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। अगर मान लो सारे बैंकों को अपना अपना नोट इशू करने का अधिकार दे दिया जाए तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, है ना। पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही है जो नोट इशू करता है, जिसकी वजह से पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है एज फार एज नोट सर्कुलेशन इज़ कंसर्न। सेकेंडली, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में सारा कंट्रोल रहता है तो वो आसानी से जब चाहे तो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा सकता है और जब चाहे सप्लाई ऑफ मनी को घटाया जा सकता है। थर्ड, इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अभी जस्ट मैंने बतलाया कि जिस भी वॉल्यूम का नोट इशू होता है उसके वैल्यू के बराबर आरबीआई जो है अपने पास एसेट्स रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियंस। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब है परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी टू बाय डोमेस्टिक गुड्स, एंड एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब है परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी टू बाय द फॉरेन गुड्स। तो आरबीआई जो है वो करेंसी के इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबल रखने में मदद करता है। अब सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विथ रिस्पेक्ट इशू ऑफ नोट्स। क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, उसी को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है और सुपरवाइज करना है, तो गवर्नमेंट का काम जो है वो आसान हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द करेंसी अथॉरिटी ऑफ द आरबीआई। सेकेंड फंक्शन ऑफ आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस प्रकार हम लोगों का बैंकर कौन है? हम लोगों का बैंकर कमर्शियल बैंक है, और जब हमें अपना जो सेविंग है वो हम कहाँ पर रखते हैं? कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं। और जब हमें लोन की ज़रूरत होती है तो फिर हम लोन कहाँ से लेते हैं? कमर्शियल बैंक से लेते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी जब अपना पैसा रखना पड़ता है, सरप्लस पैसा, तो वो कहाँ पर रखती है? सेंट्रल बैंक के पास। लोन की जब आवश्यकता होती है तो वह कहाँ पर जाती है? सेंट्रल बैंक के पास। The RBI acts as a banker, agent and a financial advisor to the central government and all the state governments. As a banker, it carries out all banking business of the government. It maintains a current account for keeping their cash balances. It accepts receipts and makes payments for the government and carries out exchange, remittances and other banking operations. It also gives loans and advances to the government for temporary periods. The government borrows money by selling treasury bills to the central bank.
तो अभी हमने बताया कि एज अ बैंकर हाउ सेंट्रल बैंक हेल्प्स गवर्नमेंट। जिस प्रकार हम लोग बैंकिंग फैसिलिटी के लिए कमर्शियल बैंक पर डिपेंडेंट है, वैसे ही गवर्नमेंट जो है बैंकिंग फैसिलिटी के लिए या एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की हेल्प करता है। गवर्नमेंट के सरप्लस अमाउंट को सरप्लस फंड को अपने पास सेफ रखता है, और साथ साथ अगर लोन की आवश्यकता गवर्नमेंट को कब होती है, जब उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है। एज एन एजेंट, the central bank buys and sells securities on behalf of the government. As a financial advisor, the central bank advises the government from time to time on economic, financial, and monetary matters. So this is all about the RBI functions as a banker to the government. बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र। यहाँ पर बैंकर्स कौन है? ऑफ कोर्स कमर्शियल बैंक। बीइंग द अपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक RBI acts as the banker to the other banks. In this sense, it bears the same relationship with commercial banks as the latter maintains with the general public. जिस प्रकार कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ रिलेशनशिप होता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ रिलेशनशिप होता है। एज द बैंकर टू बैंक्स, द सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटीज। 3 तरह से काम करता है सेंट्रल बैंक फॉर द कमर्शियल बैंक। फर्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व को अपने पास वो सुरक्षित रखता है। क्यों, कैसे रखता है? बिकॉज एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विथ द सेंट्रल बैंक. In this way, central bank acts as a custodian of cash reserves of commercial bank. हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास यानी कि RBI के पास रखना पड़ता है, रिज़र्व रखना पड़ता है। और इस तरह आप देखते हो कि हर एक कमर्शियल बैंक का के टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है वो सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के पास सुरक्षित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। When commercial banks fails to meet their financial requirement from other sources, they approach the central bank to give loans and advances as lender of the last resort. Central bank assists these banks through various instruments like discounting of approved securities and bills of exchange. फ्री में तो कोई नहीं देता है, तो अगर कमर्शियल बैंक को भी चाहिए लोन चाहिए तो उसे भी कुछ ना कुछ अपना गिरवी रखना पड़ता है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और उसे कहीं से भी हेल्प नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में जो लास्ट अंतिम ऋणदाता है वो है आपका सेंट्रल बैंक। एंड इफ़ the central bank refuses to extend this help, there is no option for bank but to shut down. अगर किसी कारणवश सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को हेल्प नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक को अपना बैंक जो है वो बंद कर देना
पड़ता है। Clearing house. All commercial banks have their account with the central bank. Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account. आपने देख रखा है कि हर एक कमर्शियल बैंक का कुछ ना कुछ डिपॉजिट जो है वो CRR के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रहता है। साथ ही सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स भी सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल है कि मान लीजिए दो बैंक है, ठीक है। सपोज देयर इज बैंक ए and bank A receives a check of rupees 10,000 drawn on bank B, and bank B receives a check of rupees 15,000 drawn on bank A. अब क्या होगा? आपको पता है कि दोनों ही बैंक का रिजर्व भी है सेंट्रल बैंक के पास और अकाउंट्स भी है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक एक में क्रेडिट कर देगा 10,000 रुपीज़ और डेबिट कितना कर देगा 15,000 रुपीज़, और बैंक बी जो है उसके खाते में क्या, अकाउंट में क्या करेगा, 10,000 को डेबिट कर देगा और 15,000 को क्रेडिट कर देगा। बस हो गया, चेक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो बैंकों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पर जो कि सेंट्रल बैंक है वहाँ पर उनका चेक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा कि एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक जो है वो 3 तरह से काम करता है। अभी तक हमने देखा 3 तरह से काम किया। पहला, custodian of the cash reserve, the second is lender of the last resort, and the third is clearing house, and fourth one is as a supervisor. Central bank regulates and controls the commercial banks. It makes rules regarding their licensing मतलब परमिशन देना बैंक खोलने की। ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांच को अगर एक्सपेंड करना है तो भी सेंट्रल बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, एमालगमेशन मतलब मर्जिंग ऑफ बैंक्स, जैसे अभी हुआ है ना, 2-3 बैंक मर्ज हुए हैं। फॉर एग्जांपल OBC और यूनाइटेड बैंक PNB में मर्ज हो गया है ना। तो ये सब किससे पूछकर होता है? ये सारा काम जो है वो RBI यानी कि सेंट्रल बैंक से पूछकर किया जाता है। एंड लिक्विडेशन मतलब अगर कोई दिवालिया हो गया तो उसको वाइंड करना है या नहीं करना है, ये सारा डिसीजन जो है वो कौन लेता है? RBI लेती है, यानी कि सेंट्रल बैंक लेती है, ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड द रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम। And the last and most important function of the central bank is controller of credit. आपको पता है, आपने पढ़ रखा है हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट एंड इन्फ्लुएंस करती है कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी को। Credit control is the most crucial function played by any central bank in the modern times. The primary objective of credit control is to remove causes responsible for instability in price fluctuations, which in turn are related to the supply of money. और यहाँ पर ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन का है वो आपका इशारा कर रहा है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की तरफ। तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो किस प्रकार सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करती है
और डिफ्लेशन है तो किस प्रकार मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक जो है वो इंक्रीज़ करती है, और इसको करने के लिए जो टूल्स यूज करती है सेंट्रल बैंक उसको हम लोग या तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टूल्स कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स में अंतर ये है कि क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब होता है कि ओवरऑल मनी को कंट्रोल करना। क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो ओवरऑल मनी को कंट्रोल करती है, जबकि क्वालिटेटिव टूल जो है वो इकोनॉमिक के स्पेसिफिक सेक्टर की तरफ फंड्स को डायरेक्ट करने के लिए कमर्शियल बैंक को दिशा निर्देश देती है। Quantitative tools control the extent of money supply by changing the cash reserve ratio or statutory liquidity ratio or bank rate or repo rate or reverse repo rate or through open market operation. Qualitative tools include persuasion by the central bank in order to make commercial banks discourage or encourage lending, which is done through margin requirements, moral suasion, etc. इस क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इसमें हमने बताना शुरू किया तो ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जनरली 4 मार्क्स से क्वेश्चन इधर से बनते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज discuss any one of the following functions of a central bank. First is government's bank and B is banker's bank. Question 2. Discuss briefly the following functions of a central bank. A. Lender of last resort. B. Authority of currency issue. Thank you.